Good morning students, welcome back to your online classes. So today we are going to continue with practice set 4.1 second question. First I have completed and the last one I have completed. Now second, third, fourth, fifth and sixth one. So now here the very first question is, draw an acute angle triangle PQR, draw all of its altitudes, name the points of concurrence as O. Okay, so let's construct it. So we have here on question number 2 acute angle triangle namely PQR. Now we have to draw what we have to draw beta altitudes of it. Okay, so हमें altitudes बनानी है. So how will we going to draw? First we are going to extend all the sides so that this is R will going to get extended first, then this PR will also get extended and this PQ will also get extended. Okay, then we'll place rounder over the vertex of P, over the vertex P, then we'll mark one arc over here and other arc over here. Okay, then यहाँ पर आर्क आ रहा है तो हम यहाँ पर भी एक्सटेंड कर देंगे ये वाली लाइन हमारी कि एल्टीट्यूड्स बनानी है. एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, तो हाइट सेम होती है पूरे बेस की. Okay, so from now here what we're going to do, we'll place this intersection point and draw one arc, and from this intersection point we'll draw another arc, then again we'll join this vertex from this intersection point, we'll say this as L. Okay, now second one, from the vertex Q we'll draw on the opposite sides. Okay, so how we're going to draw? अभी यहाँ पर ये यहाँ आ रहा है राइट. फर्स्ट we're going to extend this line that is PR, यहाँ से extend कर देते हैं. Okay, so now what we're going to get from this Q, one arc over here and other arc over here. Then here bisection point पर हम रखेंगे, एक आर्क ऊपर बनाएंगे, then another arc from this side here, and we'll draw this line. Okay, we'll join this line from vertex Q, this intersection point. This is the second one. Now from R onwards we'll draw an arc, we'll place a rounder पॉइंटेड बनो ये सी है. यहाँ पर भी आर्क हम लोग का यहाँ पर लाई करने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइन्स नहीं एक्सटेंड हो रही है. सो विल एक्सटेंड दिस लाइन. ओके, सो विल एक्सटेंड दिस लाइन फ्रॉम आर पॉइंट वर्टेक्स आर, विल ड्रॉ वन आर्क हियर, वन आर्क हियर, सॉरी वन आर्क ओवर हियर. देन दिस बाइसेक्शन पॉइंट हम यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे और यहाँ से ये वाले बाइसेक्शन पॉइंट से यहाँ एक बनाएंगे. देन विल जॉइन दिस वर्टेक्स विद दिस इंटरसेक्शन पॉइंट. ओके, सो विल से दिस एज L, this point as M, this point as N. So these are the three altitudes. Altitudes means परपेंडिकुलर रहते हैं राइट. अभी कहाँ ज्वाइन हो रहे, यहाँ हो रहे. सो ये क्या है हम लोगों का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस राइट. सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किस में बोला था, ओ में. तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज ओ. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 सेज, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल STV, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रोइड. सो हम लोग को STV बनाना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. So first we'll draw an obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle obviously 90 के above रहता है right. So how will we going to draw? So ये 90 डिग्री के अपोजिट, सॉरी 90 डिग्री के से ज़्यादा होगा. Okay, so this is our obtuse angle triangle. Okay, namely this is question number 3, STV. So STV. Okay, so now what we're going to do, we have to draw a median. So how will we going to draw? First हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. मोर देन हाफ, अबाव, बिलो, फ्रॉम दिस ईयर अबाव, बिलो. So we'll join these two intersection points. Okay, so we'll say this as L, this is N. Okay, सो ये साइड के अपोजिट वर्टेक्स S से हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे. ओके, सो विल से दिस एज LM, ये इसको P बोल दो. देन नेक्स्ट वन हम लोग इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे ST का. मोर देन हाफ, वन फ्रॉम ईयर, अनदर फ्रॉम दिस वन. फिर S पे रखेंगे, वन आर्क फ्रॉम ईयर एंड अनदर वन फ्रॉम ईयर. देन अगेन विल जॉइन दिस टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स.
ओके। सो अभी यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया इसका। अभी इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ये है, तो V और यहाँ पर जो भी आएगा, सपोज दिस पॉइंट इज Q, तो ये हो गया मीडियन, राइट। सो विल ड्रॉ फ्रॉम V वन लाइन, और दिस इज Q। नाउ थर्ड वन SV। सो व्हाट विल गोइंग टू डू, विल प्लेस अ राउंडर, विल टेक मोर देन हाफ, एक लाइन ऊपर, एक लाइन यहाँ पर, देन विल प्लेस ऑन S here, then below one, then we'll join these two arcs, okay. Now here PQ and this point is R and opposite of it is T, यहाँ से T से join करेंगे, तो ये हो गया मीडियन। सो ये तीनों मीडियंस, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो ये कहाँ मिले आके, यहाँ मिले, राइट। सो दिस इज़ अ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को नाम क्या देने बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 से शो करने बोला है, तो हम लोग इसको G नाम दे देते हैं, ओके। एंड देन विल राइट हियर बिलो डाउन दैट G इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल STV, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what question number 4 says, draw an obtuse angle triangle element, draw its altitudes and denote the orthocenter by O। तो हम लोग को ट्राइंगल एलिमेंट बनाना है जो ऑब्ट्यूज एंगल में है, और उसके एल्टीट्यूड्स बनाना है, और उसका ऑर्थोसेंटर फाइंड करना है। सो ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, अगेन क्वेश्चन नंबर 4। सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाना है, सो फर्स्ट विल ड्रॉ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मोर देन 90 डिग्री, सो लाइक दिस, and will name as LM, so L M N, okay। now we have to draw altitudes, so how will draw altitudes, हम लोग पॉइंट पे रखते हैं वर्टेक्स पे, और अपोजिट जगह दो आर्क मार्क करते हैं। बट अगर हम लोग N पे रखेंगे और L का लेने जाएंगे, राइट, तो सेकेंड वाला नहीं आएगा, तो हम लोग एक्सटेंड करेंगे LM को, अगेन एल्टीट्यूड्स में किए थे हम लोग ने एज, ओके। सो हम लोग N पे रखेंगे, विल मार्क 1 here, 1 here, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, नो इशू, बढ़ा देंगे। देन अगेन विल प्लेस हियर 1 arc over here, another arc from this side, this, so we'll draw this here, okay। this is our first altitude towards this LM। नाउ सेकेंड वन LN, यहाँ L से बनाए थे, सॉरी N से बनाए थे, अभी M से बनाएंगे। एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, देन यहाँ पर जो पॉइंट मिला उसको यहाँ से जो पॉइंट मिला उसको यहाँ से, देन विल जॉइन विथ M। सो या दिस इज़ आवर सेकेंड एल्टीट्यूड, ओके, दिस इज़ आवर फर्स्ट एल्टीट्यूड। Now next one is L, from L side, so now from L side यहाँ से तो M के तरफ जाएगा, राइट। तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो एक आर्क यहाँ मेंशन करेंगे, एक आर्क यहाँ, एंड विल एक्सटेंड दिस लाइन MN, ओके। सो MN एक्सटेंड करना है हमें, okay। So we have here 1 point, so what we're going to do, again place this rounder, okay, below 1, from here also below 1, so we have this point over here, so we'll join from L onwards, this is, so first altitude हमें यहाँ से मिला LM। सो यहाँ पर हम लोग एक नाम दे देते, सपोज़ ये पहला एल्टीट्यूड को भी नाम दे देते और इसको भी एक्सटेंड कर देते, सो दैट हम लोगों को ऑर्थो सेंटर मिलेगा। सो दिस इज़ आर लाइन, विल गिव दिस एज, वेट, विल P दे देते, इसको MN दिया हुआ है, ये N है अपना, राइट, सॉरी N नहीं है, यहाँ पर M है, LMN। सो यहाँ पर हम लोग कुछ और नाम, सॉरी ये 90 डिग्री का सिंबल था हमारा, सो ये P दे दिए, ये Q दे दो, इसे R दे देते। अभी हम लोगों को तीनों का ऑर्थो सेंटर है, कहाँ मिल रहे हैं, सो ये लाइन L की है, ये लाइन ये Q वाली है, राइट, एंड दिस, तो एल्टीट्यूड तीनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं,
राइट। सो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हम लोग का ऑर्थो सेंटर, सो हम लोग जी बोल देंगे उसे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑर्थो सेंटर ओ बोल देंगे बिकॉज यहाँ दिया हुआ है। सो विल से दिस एज ओ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Now question number 5, draw right angle triangle XYZ, draw its medians and show their point of concurrence as G। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में राइट एंगल ट्राइंगल है दैट इज XYZ। नाउ व्हाट विल गोइंग टू डू, हम लोग को इसके मीडियंस बनाना है। सो मीडियंस कैसे बनेंगे, फर्स्ट व्हाट विल गोइंग टू डू, विल टेक अ राउंडर, विल हैव मोर देन हाफ पॉइंट ओवर हियर, 1 here, second below, then from here 1 second below। Okay, so now we'll join this two intersection point, so we have perpendicular bisector, sorry this is not perfect, so now so we'll join this properly। Okay, so now opposite side के opposite vertex कौन सा है, x, so ये हो गया first median, so we'll say this as P। now second one xz, more than half लेना है, so एक ऊपर यहाँ से, sorry एक यहाँ से, then from x onwards this one and this one, so we'll join this also। ओके, सो ये लाइन मिल गई किसकी, एग्जैक्ट। अभी एग्जैक्ट के अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा है, वाई, सो ये यहाँ से वाई की तरफ ज्वाइन होगा, सॉरी यहाँ से, तो ये हमारा सेकेंड मीडियन हो गया। नाउ थर्ड वन, ये फर्स्ट मीडियन था, ये सेकेंड मीडियन हो गया। सेकेंड मीडियन हो गया, P विल से दिस एज Q। नाउ फॉर XY विल टेक मोर देन हाफ, ऊपर एक लीजिए, नीचे, then second arc from this side and this side। so now what we are going to do, we'll draw this two intersection points। so we have next perpendicular of xy here, but opposite side vertex is z, so we'll join this from z। okay, we'll say this as R। अभी मीडियन RZ, मीडियन XP, मीडियन PQ ये मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हम लोगों को क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय G, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, G। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियन एल्टीट्यूड्स, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। नाउ आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, राइट। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग पहले नीचे बेस बनाएंगे ऑफ सपोज 6 सेंटीमीटर, देन हम लोग सेम लेना है ना मेजरमेंट, सो सपोज 5 सेंटीमीटर का ले रहे हैं। सो विल place one arc over here, second arc over here। okay, then we'll join these 2 points। okay, इसको नाम क्या देना, क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं दिया तो कुछ भी ले सकते, तो हम लोग ABC लेते हैं, ABC। ओके, तो हम लोग को इसको मीडियंस भी बनाने हैं, हम लोगों को इसमें एल्टीट्यूड्स भी बनाने हैं। तो हम लोग सबसे पहले मीडियंस बनाते हैं। सो विल प्लेस हियर आर्क, मीडियंस बनाना है, मोर देन हाफ, एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा, सेम एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा। सो नाउ विल जॉइन दिस 2 पार्ट्स। ओके,
और ये यही पॉइंट से हम लोगों का ये बन गया, तो अपोजिट वर्टेक्स क्या है ए, तो यही होगा, तो ये फर्स्ट मीडियन हो गया हम लोगों का। ओके, नाउ सेकेंड मोर देन हाफ। ओके, सो वन आर्क ओवर हियर, अदर आर्क ओवर हियर, फिर ए से लेंगे हम लोग, वन आर्क फ्रॉम दिस साइड, अनदर आर्क फ्रॉम दिस साइड। सो ये और ये पॉइंट इंटरसेक्शन विल जॉइन दिस। ओके, तो ये ए सी के अपोजिट कौन सा है, बी, तो ये पॉइंट से हम बी को ज्वाइन करेंगे बिकॉज ये मीडियंस है, राइट। तो दिस इज़ आर सेकेंड मीडियन। नाउ थर्ड वन, मीडियन ज़रूरी नहीं है राइट एंगल हो, सो विल नॉट मेंशन ये राइट एंगल, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए। सो लेट्स सी ए बी, तो ए बी भी मोर देन हाफ लेंगे हम लोग, one side, second side, so here again one side, second side, and what we're going to do, we'll draw this, so ये ए बी के अपोजिट वर्टेक्स सी है, तो यहाँ से हम लोग ये लाइन ड्रॉ करें। ओके, सो वी हैव मीडियंस से बनाए ना, तो वी हैव point of concurrence of medians, here we'll say this as G. Okay, so this is L, this is M and this is N. Let's see. Okay, so हम लोग का median क्या हो गया, CM, AL and BN. So these are the medians and the point of concurrence is G. Now altitudes बनाना है हमें। So how to draw altitudes, हम लोग यहाँ पर एक मार्क करते रहे, यहाँ पर एक मार्क करते थे, तो सेम यहाँ पर एक मार्क किए, यहाँ पर एक मार्क किए, राइट। सो नाउ व्हाट विल गोइंग टू डू, विल प्लेस दिस पॉइंट ओवर हियर, एक आर्क यहाँ पर आएगा, राइट, अनदर आर्क यहाँ से आएगा। ओके, सो ये फर्स्ट वाला मिला एल्टीट्यूड, सो ए से हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। एक मिनट, लेट मी सी दिस, सॉरी, एक आर्क हम लोग को यहाँ से मिला एंड सेकेंड आर्क यहाँ से लेना है, सॉरी, तो सेकेंड आर्क हम लोग को यहीं मिलता है। सो मीन्स सी, फर्स्ट यहाँ से एल्टीट्यूड्स बनाना, तो क्या करना पड़ता है, एक आर्क यहाँ से, एक यहाँ से, तो यहाँ पर रखेंगे, सपोज मोर देन हाफ दे रहे, एक नीचे ले लेते, देन विल प्लेस दिस हियर एंड यहाँ एक आर्क है। सो व्हाट विल गोइंग टू गेट, यहाँ से एक लाइन जा रही है, सेम लाइन आगे कैरी फॉरवर्ड होगी हम लोग की, दैट इज़ दिस वन, क्योंकि यहाँ पर ये सेम ही रहेगा। वरना हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये हम लोग ने ये मीडियंस का बना लिए, सेम मेजरमेंट लेके हम लोग नीचे एल्टीट्यूड्स का बनाते हैं और फिर दोनों का ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ओके, सो ये मीडियन वाला हो गया, अभी एल्टीट्यूड्स वाला बनाते हैं। सेम हाउ विल गोइंग टू ड्रॉ, विल प्लेस 6 सेंटीमीटर लाइन बिलो। ओके, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, 5 सेंटीमीटर का आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो दोनों साइड 5 सेंटीमीटर की रहेगी, बिकॉज उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा इसलिए। ओके, सो विल जॉइन दिस टू, नेम एज ए बी सी। अब एल्टीट्यूड से बनाना है, सो ए से पॉइंट लेके नीचे, तो हम लोग पहले एक्सटेंड कर देते हैं, एल्टीट्यूड से हम एक्सटेंशन करते हैं, तो लेट्स सी। वैसे इसमें ज़रूरी नहीं, इसमें नहीं भी करेंगे तो आ जाएगा, बट फिर भी एल्टीट्यूड है ना। सो from here onwards, one line below, and from here onwards, one line below, and we'll join this. This is our first altitude. Now BC हो गया, अभी AB, सॉरी A हो गया, now B टर्न, एक आध यहाँ
और दूसरा आर्क यहाँ. सो नाउ विल प्लेस 1 here, another 1 here. Will join from vertex B this intersection point. Okay. So now we'll say this as, हम लोगों ने यहाँ पर इसको एल ही दिए थे तो ये एल ही आएगा. और ये वाला पॉइंट जो है हम लोग का एल्टीट्यूड्स का है, मीन्स हाइट का है, विच इज़ 90 डिग्री. तो इसको हम लोग पी बोल देते हैं क्योंकि ऊपर पी नहीं दिया, ये मीडियन का है तो एम डी. ओके, तो पी बोल देते हैं. नाउ फॉर ए बी सी का फ्रॉम ए बी मतलब एल्टीट्यूड बनेगा सी से. तो एक आर्क यहाँ ए पे कटेगा, दूसरा यहाँ कटेगा. सो यहाँ से ऊपर एक लाइन बनेगी, एक ए से बनेगी. ओके, सो यहाँ से हम लोग का अगेन सी से एक पॉइंट पास होगा, लाइन. हम लोग पी हो गया, इसको आर बोल देते हैं, ये एल्टीट्यूड्स. सो नाउ हम लोग इसको नाम दे देते हैं ओ. ओके, ये क्या है, एल्टीट्यूड्स का ऑर्थो सेंटर है. ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. सो ये ओ है. तो हम लोगों को क्या क्वेश्चन में बोला है, दैट ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियंस एंड एल्टीट्यूड, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस से ऑब्जर्वेशन बताएं. नाउ सी मीडियंस में हम लोगों ने बनाए तो ये भी ए एल की लाइन पर आया है, राइट, और ये भी ए एल की लाइन पर आया है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, राइट. सो हाउ विल गोइंग टू राइट हियर, और यहाँ पर बेस बी सी है. सो इसका पॉइंट ऑफ हम लोग ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, that the centroid G and the orthocenter O lie on the line which is perpendicular bisector of base BC, right. मतलब जो भी हम लोग का सेंट्रॉइड जी है जो मीडियन से बना है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन एंड ऑर्थो सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एल्टीट्यूड्स. सो वो कहाँ लाए हो रहा है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जिसका बेस क्या है हम लोग का बी सी. ओके, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पार्ट रहेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस एट 4.1. यू हैव टू गो थ्रू विथ नोट्स, वी हैव टू गो थ्रू विद द वीडियो फॉर द नोट्स. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स for attending the lecture.